पोइट्री वर्ल्ड के तमाम अरकान को सागर त्रिपाठी का आदाब। आली मर्तबत तारिफ नियाजी साहब की काविशात से ये नायाब बज़्म सजाई गई है। मैं ज़ाती तौर पर उनकी अंजुमन का और उनकी संस्था से जुड़े तमाम अरकान, अहबाब, मुंतज़मीन सबका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हम। मैं चाहता हूँ कि आज की इस बावकार बज़्म का आगाज़ दो क़तात हम्द के, एक आध क़ता नाते पाक की और मुकम्मल नातिया गज़ल से शुरू करूँ। आप हमें इजाज़त दें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वो तमाम शोरा हज़रात, अदीब, सुखनवर, हमारे चाहने वाले, हम जिनके मद्दाह हैं, उन सब का फिर से हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। कुछ ज़ाती हादसात की ज़द में आ गया था। अम्मी हुजूर हमारी 100 साल 2 महीने की होकर 1 जून को उनका इंतकाल हुआ, लेकिन हमें एक ऐसा मौका ये मिल गया जिसमें हम बारगाह रिसालत में अपनी हाज़िरी भी दर्ज कर लेंगे और इसी वसीले से अपने गम को भी हम कम कर सकते हैं। आइए आज की इस महफिल का आगाज़ सागर त्रिपाठी एक अदना सा बरहमन, इजाज़त दें आप। नाम से उसके कर रहा हूँ शुरू, वो जो खालिक है शान वाला है। ज़ेब देती है किबरियाई जिसे, जो बड़ी आन बान वाला है। हम्द के शेर गुनाऊं मैं, बंदगी के मजे उठाऊं मैं। लुत्फ की बात है कि सर अपना रख के सजदे में भूल जाऊं मैं। आईना दिल का मेरे साफ तो है, शिर्क से मुझको इन्हिराफ तो है। वहदहू ला शरीक है अल्लाह, मुझको सागर ये एतराफ तो है। खास एहसान के दायरे में नूरे यज़दां के दायरे में हूँ। इश्क़ सरकार की वसीले से मैं भी ईमान के दायरे में हूँ। रोशनी के अमीन हैं आका, रूहे माहे मुबीन हैं आका। सिर्फ एक कौम के नहीं है वो, रहमते आलमीन हैं आका।
صرف ایک قوم کے نہیں ہیں وہ، رحمت عالمین ہیں آقا۔ خاص احسان کے دائرے میں ہوں، نور یزداں کے دائرے میں ہوں، عشق سرکار کی وسیلے سے میں بھی ایمان کے دائرے میں ہوں۔ ایک شاہکار دین کا تصور ہی بہت ہے، سرمایہ یقین کا تصور ہی بہت ہے۔ اس پاک سرزمین پہ قدم رکھ نہیں سکتا، اس پاک سرزمین کا تصور ہی بہت ہے۔ آئیے آغاز ایک ایسی نعت سے کرتے ہیں، طوطئ ہند امیر خسرو کی زمین، اور یہ خاص طور پر یہ تحفہ ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں۔ زحال مسکی مکن تغافل درائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجرا نہ دار میجا نہ لیہو کاہے لگائے چھتیاں۔ پوئٹری ورلڈ کے تمام دوستوں کو اس لیے آداب بجا لاتا ہوں، جناب سومن گل صاحب، ذاکر خان صاحب، منصور عثمانی صاحب، عقیل نعمانی صاحب، میں طارف نیازی صاحب کا میں پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آئیے اس برہمن کی بارگاہ رسالت میں حاضری، وہ طوطئ ہند کی وہ زمین۔ چراغ روشن تھا جن کے آگے، چراغ روشن تھا جن کے آگے، عقیدتوں سے بھری تھیں چھتیاں۔ چراغ روشن تھا جن کے آگے، عقیدتوں سے بھری تھی چھتیاں۔ وہ لوگ کتنے تھے بخت والے جو سن رہے تھے نبی کی باتیاں۔ رسول حق نے خلوص دل سے نبھائے سارے فرائض اپنے، رسول حق نے خلوص دل سے نبھائے سارے فرائض اپنے، قیام دین خدا کے خاطر نہ دن کو دیکھا نہ دیکھی رتیاں۔ یہ شعر خاص طور سے نبی نے جس کے تئیں کہا ہے، یہاں سے گزرو تو تیز گزرو، گزر اگر ہو کبھی وہاں سے، قدم کی اپنے بڑھاؤ گتیاں۔ ایک خاص اس میں میسج آپ کو ملے گا کہ کہیں گئے خود، کہیں گئے خود، کہیں صحابہ سے حکم پروردگار بھیجا، کسی کے حق میں دعا کی رب سے، کسی کو لکھوا کے بھیجی پتیاں۔ میرے خدا میں بنوں نہ فاسق، رہوں سدا میں نبی کا عاشق، ہے نفس میرا بڑا منافق،
کرے غموں سے ہزاروں گھتیاں. ایک مرکزی شعر جس کے لیے یہ نعتیہ غزل کہی گئی ہے: جو نام احمد پہ مر مٹا ہو، امام جس جو نام احمد پہ مر مٹا ہو، امام عشق نبی ہو جس کا نہ اس کا مذہب نہ دین پوچھو، نہ اس کا مذہب نہ دین پوچھو، نہ دھرم پوچھو، نہ اس کی جتیاں. جو نام احمد پہ مر مٹا ہو، امام عشق نبی ہو جس کا نہ اس کا مذہب نہ دین پوچھو، نہ دھرم پوچھو، نہ اس کی جتیاں. قبیلے پر تھا غرور جن کو، نہیں تھا ساگر شعور جن کو، رکھا تھا نخوت نے دور جن کو، رکھا تھا نخوت نے دور جن کو، سکھائی آقا نے ان کو خطیاں. خاص طور سے یہ شعر خراج عقیدت کے طور پر اس میں رکھا ہم نے، اور یہ طوطی ہند کے لیے ہے. امیر خسرو کی یہ زمین ہے، امیر خسرو کا آستانہ، امیر خسرو کی یہ زمین ہے، امیر خسرو کا آستانہ. کروں ہوں ساگر میں نعت گوئی، کھری ہیں سانچی نبی کی بتیاں. جو نام احمد پہ مر مٹا ہو، امام عشق نبی ہو جس کا نہ اس کا مذہب، نہ اس کا مذہب نہ دین پوچھو، نہ دھرم پوچھو، نہ اس کی جتیاں. بڑی مقدس محفل آپ لوگوں نے سجائی ہے. میں تو ایک ادنا سا اردو ادب کا خادم ہوں. آئیے اس سلسلے کو ایک بالکل نئے زاویے سے کہی گئی نعتیہ غزل ہے، جس میں ہر شعر وہ اعلیٰ کردار ان کے بارے میں گفتگو کرتا ہے. بالکل ایسے لگے گا کہ آپ ہی اس کردار کے روبرو بیٹھ کر کے یہ باتیں کر رہے ہیں. شجر حجر یہ خشک و تر ہے، نغمہ زن خوشی خوشی. اس برہمن کی تخلیق کو سراہیے گا. ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ بارگاہ رسالت میں دن رات ان کی عبادت میں گزرا ہے. کہ شجر حجر یہ خشک و تر ہے، نغمہ زن خوشی خوشی. زمین پہ آ گیا ہے وہ نبی جسے کہیں نبی، نبی 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 نبی. یہ بو جہل کے ہاتھ سے نصیب ہی سنور گیا. اولا مصرے کی بات کا خلاصہ دیکھیے کیسے کر رہا ہوں کہ یہ بو جہل کے ہاتھ سے نصیب ہی سنور گیا. نجات مل گئی کہے یہ کنکری سے کنکری. نبی 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 نبی
नसीब अब हलीमा तेरा खूब जगमगाएगा। नसीब, सोचिए वो कौन सा किरदार होगा जो हमारी बी को सिर्फ हलीमा के बिना किसी लकब के पुकार रहा है कि नसीब नसीब अब हलीमा तेरा खूब जगमगाएगा। तुझे कोई भी गम नहीं ये कह रही थी ऊँटनी। नबी 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 नबी। नसीब अब हलीमा तेरा खूब जगमगाएगा। तुझे कोई भी गम नहीं ये कह रही थी ऊँटनी। नबी 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 नबी। ये हिज्र की वो रात थी सभी थे डर में मुब्तला। ये हिज्र की वो रात थी सभी थे डर में मुब्तला। मुझे किसी का डर नहीं ये कह के सो गए अली। नबी 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 नबी। एक वाकया देखें हजरत के साथ हमारे बुजुर्ग जिब्राइल, और बात क्या हुई कि ये जिब्राइल ने कहा कि उम्र में हूं मैं बड़ा। सरकार दो आलम के सामने सवाल किया कि ये जिब्राइल ने कहा कि उम्र में हूं मैं बड़ा। फिर आका बोले देखी है क्या आपने ये रोशनी। नबी 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 नबी। फिर आका बोले देखी है क्या आपने ये रोशनी। जबीन पाक मुस्तफा पे थी वही तो रोशनी। नबी के एक गुलाम का ये मर्तबा तो देखिए। सैयद काशिफ जैदी साहब, मुसव्विर फिरोजपुरी साहब, सोनिका जी, तारिफ न्यासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद नदीम बदायूनी साहब। लीजिए मैं शेर हाजिर कर रहा हूँ, बिल्कुल शेर हाजिर करता हूँ कि नबी के एक गुलाम का ये मर्तबा तो देखिए। नबी के एक गुलाम का ये मर्तबा तो देखिए। अंधेर कैद हो गए बिलाल ने अज़ान दी। अंधेरे कैद हो गए बिलाल ने अज़ान दी। पवन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सज्जाद झंझट साहब, इकरा साहिबा, बहुत सारे दोस्तों ने। ये नाते पाक की महफिल है इसलिए मुदाखलत नहीं कर पा रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं कि नबी के एक गुलाम का ये मर्तबा तो देखिए। अंधेरे कैद हो गए बिलाल ने अज़ान दी। इरादा करके आए थे उमर नबी के कत्ल का। इरादा करके आए थे उमर नबी के कत्ल का। नजर मिली जो आप से पढ़ा है कलमा उस घड़ी। नबी 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 नबी। खुदा ने
خدا نے خود کہا ہے یہ، اے میرے آقا آپ سے، کتنا بھی چاہیں نعت شریف اگر روح کو معطر کر کے آپ پڑھ رہے ہیں تو آنسو اپنے آپ آ جاتے کہ خدا نے خود کہا ہے یہ، اے میرے آقا آپ سے، تیرے لیے خدا ہوں میں، تو ہے میرا نبی 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 نبی، لکھوں میں نعت پاک یہ کہاں میری بساط ہے، لکھوں میں نعت پاک یہ کہاں میری بساط ہے، اٹھائے جب قلم یہ ساگر آپ کیجے رہبری، نبی 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 نبی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، چونکہ نعت گوئی کے دوران تسلسل، کیفیت، وہ روحانی ذہنیت، اس میں کوئی مداخلت ہونی نہیں چاہیے۔ اس سلسلے کی میری ایک نظم ہے جو اب تک میں دنیا کے 43 ملکوں میں پڑھ چکا ہوں۔ اس برہمن کی تخلیق اور ایک ایسا زاویہ ہم نے جوڑا، ڈاکٹر نیلما پانڈے جی، کتائن جی، سونیکا مشرا جی، سمیر خان نیازی صاحب، بہت سارے میرے دوست ہیں۔ میں آپ سب کو پھر سے سلام کر رہا ہوں۔ طارق نیازی صاحب، بہت بہت آپ کا شکریہ، اتنے بے شمار لوگوں کی دعائیں مل رہی ہیں، میں سب کا شکریہ الگ سے فیس بک پر جا کے کروں گا، لیکن ابھی وہ میری نظم جس کے لیے پوری دنیا میں جانا جاتا ہوں، صرف ایک اشارہ ہے کہ 51 سال قبل جب آپ حرم شریف جاتے تھے، عبادت کے سمے اگر آپ سجدے میں سر رکھ کے سر اٹھاتے تھے تو وہ جو دو بڑے شاہ راہ ایک پہ جو مینارہ تھے، اس کے ساتھ وہ آپ کا مقدس دائرہ، افق، سامنے صفا مروہ، فلک، عرش، خلا، اللہ کی عبادت کا وہ سیدھا رابطہ، آج سامنے 90 منزل کا زمزم ٹاور بن گیا ہے۔ جب آپ وہاں سر اٹھاتے ہیں تو خلل پڑتا ہے عبادت میں، یہ میرا ماننا ہے۔ ڈاکٹر ناصر امروہی صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے تو جتنی ہماری مہمان نوازی کی تھی، میں تو مشکور و ممنون ہوں امروہہ پورے شہر کا۔ عالم سین شین صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، ہم سب آپ کو میں پھر سے سب کا شکریہ ادا کروں گا۔ آئیے نظم حاضر کرتا ہوں۔ نظم کا عنوان ہے ابراج حرم، کہ مرکز علم و عمل تھا یہی صحرائے بسیط، مرکز علم و عمل تھا یہی صحرائے بسیط۔ پرتھمیش بینرے بیٹے، بہت بہت شکریہ، بہت نایاب بچے ہیں آپ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ سنیں حضرت کہ مرکز علم و عمل تھا یہی صحرائے بسیط، ہاں یہی فیض نبوت تھا زمانے پہ محیط، یہی باطل پہ ہوا کرتی تھی سچائی کی جیت، تھا ہواؤں میں صدا امن و اما کا سنگیت، ایک تضاد آہ مگر آج بہن سامنے ہے، اٹھیں سجدے سے تو ابراج حرم سامنے ہے۔ ارے وہی ارکان و مناسک، وہی حج کی تنظیم، چشمہ زمزم و نقش قدم ابراہیم، اسود و ملتزم و سجدہ گہے قوس حتیم، کعبے کی چوکھٹ، سب وہی ہے پہ کہاں سادگی دور قدیم، عہد حاضر کی عمارت کا بھرم سامنے ہے، اٹھیں سجدے سے تو ابراج حرم سامنے ہے۔ رفعت روح کا مظہر، سکون ملتا تھا انہیں دیکھ کہ رفعت روح کا مظہر تھے یہ روشن مینار، جو ادا کرتے تھے ایک لامتناہی کردار، جیسے گھلتے ہوئے ہوں انفس و آفاق کے دوار، آج حائل ہے مگر ایک ستم کی دیوار، دل میں ایک کرب ہے اور صورت غم سامنے ہے، اٹھیں سجدے سے تو ابراج حرم سامنے ہے۔ اب
उन वजूहात का भी जिक्र कर रहा हूं। पेट्रो डॉलर, अरे रेत में एक जरे सयाल निकल आया है, तल्ख हकीकत, रेत में एक जरे सयाल निकल आया है, अहले सितवत पे तकब्बुर का घना साया है, ख्वाहिशे दहर ने ईमान को धुंधलाया है, गंज अब जज्बो अकीदत का फरोमाया है, जीनते डॉलरो दीनारो दिरहम सामने है, उठे सजदे से तो अब राजे हरम सामने। अरे फिर से एक शैला बरामद हो जिदूदे रफ्ता, वो उफुक अपनी गुज़िश्ता वो उमूदे रफ्ता, औद कर, अरबी का लफ्ज शरीक है आपसे पूछ के लौट कर, औद कर आए यहाँ खुशबुए ऊदे रफ्ता, फिर नजर आए वही शाने नमूदे रफ्ता, है ये हसरत मगर इम्कान तो कम सामने है, उठे सजदे से तो अब राजे हरम सामने। देखिए, मैं किसी आम जबान में गुफ्तगू नहीं कर रहा हूं। अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि अपने महबूब की खातिर खुदा को था मंजूर, वरना कुरान भी उतरता बज़बान है। जनाब अंदाज अमरोहवी साहब, सैयद साहब, बहुत सारे हमारे दोस्त, हमारे अहबाब, हमारे मोहसिन, सबको सलाम सद सलाम। पहले से हुक्म हुआ था 2-3 शेर उर्दू ज़बान के हवाले से कि हर एक, नितिन गर्ग साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, कि हर एक लफ्ज से कानों में शहद घोल गया। ये कौन है कि जो उर्दू ज़बान बोल गया? जब भी आला कमान बोलेगा फर्श पर आसमान बोलेगा, और उसकी उसकी आंखों में प्यार उभरा है, अब वो उर्दू ज़बान बोलेगा। अरे मोहब्बत छोड़िए, तकरार में भी लुत्फ आता है। मोहब्बत छोड़िए, तकरार में भी लुत्फ आता है, अगर तकरार भी उर्दू ज़बान में हो करीने से। वो मेरी गुफ्तगू से रूठ के मुंह फेर लेता है, करिश्मा है ये उर्दू का, पलट के देखता भी है। हम अपना तारुफ एक कता के हवाले से, इनमें जितने नाम आए हैं वो सब गैर मुस्लिम उन शोरा हजरात के हैं जिन्होंने बेपनाह खिदमत की और बहुत सारी सिताइश दाद पजीराई अदब से, और हमारे मुसलमान शोरा हजरात से, अदीबों से, सुखनवरों से मिली हुई। आइए कि फिराक आज़ाद मुल्ला शाद कौसर के ज़माने से, फिराक आज़ाद मुल्ला शाद कौसर के ज़माने से, मेरी बहन शबीना अदीब, बहुत बहुत शुक्रिया आपा। आपने तो हमारे साथ, आपके साथ मुझे ये शरफ़ हासिल है खलीज ममालिक में जाने, कहाँ कहाँ हमने आपके साथ पढ़ा। आप तो मेरी छोटी बहन है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कि फिराक आज़ाद मुल्ला शाद कौसर के ज़माने से, शऊर शायरी अरशो रज़ा के आस्ताने से, हमें भी उर्दू की खिदमत का हक विरसे में हासिल है। हमारा सिलसिला मिलता है उर्दू गाना गाने से, हमारा सिलसिला मिलता है उर्दू गाना गाने से। अरे मोहब्बत के अलावा तकरार की बातें हुई, उसमें भी उर्दू ज़बान आई। आइए, आखिरी शेर इस कबील का है कि माँ तेरी धड़कनों से आई है, मुझ में उर्दू ज़बान की खुशबू। माँ तेरी धड़कनों से आई है, मुझ में उर्दू ज़बान की खुशबू। न बात सुनती है मेरी, न मुझसे बोलती है, मेरी हयात खलाओं में क्या टटोलती है। यकीन कौन करेगा मगर ये बात है सच, अकेले में तेरी तस्वीर मुझसे बोलती है। और वो शेर जिसके लिए ये गज़ल हमने कही थी, मकबूल वाजिद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। गीतकार फैज़ बदायूनी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये मकबूल वाजिद साहब हमारे गरीब खाने पे तशरीफ़ लाए थे, तो ये शेर एकाएक हमसे हो गया था कि यकीन कौन करेगा मगर ये बात है सच, अकेले में तेरी तस्वीर मुझसे बोलती है। मुरीद हम ही अकेले नहीं हैं उर्दू के, हमारी बेटी भी उर्दू ज़बान बोलती है। ये मोहब्बत की ज़बान है दोस्तों। आइए सिलसिला शुरू करते हैं। चंद अशार, एक दो
खतात आपको आपके खिदमत में हाजिर करते हैं कि बेहिचक, ये कोरोना का दौर है, बेहिचक लोग कहाँ आजकल घर आते हैं। बेहिचक ये अदना सा मेरा आशियाना महीने में अगर हिंदुस्तान में रहता था तो कम से कम 8 नशिस्तें होती थी। आज 3 महीने से हमारे अहबाब, मेरे यार दोस्त, कोई हमारे हिम्मत ही नहीं पड़ती किसी को बोलने। तो बेहिचक लोग कहाँ आजकल घर आते हैं, यार अब हाथ मिलाने से भी डर जाते हैं। वो भी एक दौर था, मिलते थे गले लगते थे, ये भी क्या दौर है पास आने से कतराते हैं। ये भी क्या दौर है पास आने से कतराते हैं। अरे गम के बादल रोज बरसते रहते हैं, पलकों पर तूफान लरसते रहते हैं। गम के बादल रोज बरसते रहते हैं, पलकों पर तूफान लरसते रहते हैं, तन्हाई के साए कसते रहते हैं, हम दीवाने फिर भी हंसते रहते हैं। तन्हाई तन्हाई के साए कसते रहते हैं, हम दीवाने फिर भी हंसते रहते हैं। चांद सितारे घर में रखना ठीक नहीं, बाहर कितने लोग तरसते रहते हैं। चांद सितारे घर में रखना ठीक नहीं, बाहर कितने लोग तरसते रहते हैं। आबले हैं, एक 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 कथा खासतौर से इस बाविकार बज्म के रुतबे के हिसाब से आपको सुनाना चाहते हैं कि आबले हैं आसमां के पांव में, धूप धूप सोई है शजर की छांव में, और एक जुगनू की जसारत देखिए लड़पड़ा सूरज से उसके गांव में। एक जुगनू की जसारत देखिए लड़पड़ा सूरज से उसके गांव में। फलक पर आबगीने आ गए हैं, समंदर को पसीने आ गए हैं, मैं लहरों से अकेला लड़ रहा हूं, भंवर में सब सफीने आ गए हैं। इतने सारे दोस्तों को मैं किनका शुक्रिया अदा करूं, देखता जा रहा हूं इतने सारे लोग हैं। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज इस टेक्निक का नहीं है, बस बेटी लगा के देती है। पोइट्री वर्ल्ड के बहुत सारे दोस्तों को मेरा सलाम पहुँचे। जितने सारे नाम आ रहे हैं, इमरान बिन रियासत साहब का, मंसूर उस्मानी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। मंसूर उस्मानी साहब तो हमारे मोहसिन हैं, दुनिया के ना जाने कितने कोनों में उनके कदमों में बैठकर हमने शेर सुखन के आदाब सीखे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं वो। आइए आपके सामने एक, ये कोरोना का डर आजकल बहुत बुरी तरह से सबके ऊपर छाया हुआ है। एक गज़ल मेरी हुई है कि हुए हैं स्तुति झा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खान उस्मा बिन जहीर आपका बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, अदनान बिन जिया साहब आपका शुक्रिया। दोस्तों की फहरिस्त इतनी बड़ी है, और तारिफ नियाजी साहब का मैनेजमेंट, इनकी निज़ामत, ये इनका संचालन, ये जो सूत्रधार हैं, ऐसे ऐसे जश्न ये मुस्तकिल तौर पर मनाते रहते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए एक गज़ल कोरोना के नाम पर कि हुए हैं बरसरे पैकार जो पैहम कोरोना से। जमाल वास्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सईद गुफरान वास्ती साहब, भाईजान सलाम वालेकुम। और मेरे मोहसिन सैयद फरहान वास्ती साहब, गंगा जमनी तहजीब के मुहाफिज, गंगा जमनी तहजीब के अलम बरदार। आप यकीन करेंगे कि एक दिन एक जश्न में हम बैठे हुए थे और किसी बात पर दौराने गुफ्तगू इतनी जबरदस्त संस्कृत उनकी है, माँ शारदा की सरस्वती वंदना जो उन्होंने संस्कृत में की तो पूरा हॉल खड़ा हुआ। बहुत प्यारे इंसान है ये सब हमारे, इनका सबका। अंजुम बाराबंकी साहब बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान आपका। शाजमा अलावी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आइए गज़ल सुनाते हैं। अब हमने ये तय किया है कि ये जितने मेरे दोस्त हैं, जमाल वास्ती साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब हमारे मोहसिन हैं, आपकी बदौलत यहाँ तक सफ़र मेरा आया है।
तो बाद में भी हम आपका एक एक को, काशिफ अदीब साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये आपका बड़प्पन है, आपने कई बार हमको दाद दी है, पजीराई की है। अंजुम बाराबंकी साहब, भाईजान बहुत बहुत शुक्रिया, आप आते हैं तो पुरनूर हो जाती है महफिल। आइए, हुए हैं बरसरे पैकार जो पैहम कोरोना से, रहेंगे उम्र भर खाइफ यकीनन हम कोरोना से। इसमें जो जाविया हमने ढूंढा है कि इबादत भूल बैठे थे। सोचिए, खुदा और उसका निजाम रोक रहा है कि हमारे दरवाजे तक मत आओ। कहीं तो बहुत बड़ी कमी हम लोगों में आ गई है कि हुए हैं बरसरे पैकार जो पैहम कोरोना से, रहेंगे उम्र भर खाइफ यकीनन हम कोरोना से। इबादत भूल बैठे थे, खुदा को भूल बैठे थे, उठाना पड़ रहा है इसलिए ये गम कोरोना से, उठाना पड़ रहा है इसलिए ये गम कोरोना से। अभी जो कल तलक तो चीन की खिल्ली उड़ाते थे, हुए हैं आज वो भी खुद बखुद बेदम कोरोना से। अरे भला के नास्तिक थे जो, खुदा अब उनको याद आया, पनाहे मांगते हैं आज वो हरदम कोरोना से, पनाहे मांगते हैं आज वो हरदम कोरोना से। नजमी खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर नीलिमा पांडे जी, कृतायन जी, चुलबुल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश आपने जितनी जोरदार तालियों से इस्तकबाल किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो भला के नास्तिक थे जो, खुदा अब उनको याद आया, पनाहे मांगते हैं आज वो हरदम कोरोना से। इबादत रात दिन कर लो, मुसल्ला थाम लो, वरना निकलना है बड़ा दुश्वार है अब मौसम कोरोना से। इबादत अर्चना पूजा से बढ़कर अश्क बारी है, इबादत अर्चना पूजा से बढ़कर अश्क बारी है। बचा लेगी तुम्हारी आंख ये पूर्णम कोरोना से, बचा लेगी तुम्हारी आंख ये पूर्णम कोरोना से। और किसी मजहब से क्या लेना, कोरोना है अलग मजहब, सभी को खौफ है सागर ज्यादा कम कोरोना से, सभी को खौफ है सागर ज्यादा कम कोरोना से। एक बहुत ही लुत्फ अंदोज तरीके से एक गज़ल कहने की हमने कोशिश की है। इस जसारत को मैं चाहूँगा कि आपकी दाद मिले। और शबीना अली बाजी बहुत बहुत शुक्रिया, नायब जौहर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, काशिफ अदीब साहब बहुत बहुत शुक्रिया, पोइट्री वर्ल्ड के तमाम अराकीन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत प्यारी गज़ल है, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि इसे मैंने कहा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी। जो दाद आपसे मिलेगी वो अपने आप इसका सबूत होगी कि जिक्र की बात नहीं, जिक्र की, जुनैद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अस्सलाम वालेकुम, कि जिक्र की बात नहीं, हुमैरा खान बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जिक्र की बात नहीं बात का चर्चा भी नहीं, जिक्र की बात नहीं बात का चर्चा भी नहीं, कुछ छुपाता भी नहीं बात बताता भी नहीं। जिक्र की बात नहीं बात का चर्चा भी नहीं, कुछ छुपाता भी नहीं बात बताता भी नहीं। अब बुत से हो जाए या उस नूर की निस्बत में रहे, बुत से हो जाए या उस नूर की निस्बत में रहे, इश्क बस इश्क है पंडित नहीं मुल्ला भी नहीं। बुत से हो जाए या उस नूर की निस्बत में रहे। रुबीना सिराज साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नवाजिश करब आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका, कि बुत से हो जाए या उस नूर की निस्बत में रहे, इश्क बस इश्क है पंडित नहीं मुल्ला भी नहीं। अरे उससे आसान कोई शय नहीं इस दुनिया में, फैजान अहमद खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, कि उससे आसान कोई शय नहीं इस दुनिया में, मौजिजा ये है वो मुझसा नहीं तुझसा भी नहीं, मौजिजा ये है वो मुझसा नहीं तुझसा भी नहीं। अतीक अजमेरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, फैजान भाई फिर से आपका, जुनैद सकलैनी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आइए कि उससे आसान कोई शय नहीं इस दुनिया में, मौजिजा ये है वो मुझसा नहीं तुझसा भी नहीं। और दिल की दहलीज पे
عمران سید صاحب شعر سنیے یہ کہ دل کی دہلیز پہ دستک تو دیے جائے ہے، دل کی دہلیز پہ دستک تو دیے جائے ہے، بے مروت بھی نہیں ناز اٹھاتا بھی نہیں، دل کی دہلیز پہ دستک تو دیے جائے ہے، بے مروت بھی نہیں ناز اٹھاتا بھی نہیں، اور دور رہ کر میرے ہر پل کی خبر رکھتا ہے۔ آدرش دوبے جی یہ شعر خاص طور سے آپ کے لیے ہے کہ دور رہ کر میرے ہر پل کی خبر رکھتا ہے، ساتھ رہتا ہے مگر ساتھ نبھاتا بھی نہیں، ساتھ رہتا ہے مگر ساتھ نبھاتا بھی نہیں، اور راز کو راز بھی رکھنے کا ہنر ہے اس میں۔ شعر دیکھیے، اس کی گہرائی دیکھیے کہ راز کو راز بھی رکھنے کا ہنر ہے اس میں، لطف یہ ہے کہ کوئی بات چھپاتا بھی نہیں، راز کو راز بھی رکھنے کا۔ عمران اعظم صاحب شعر آپ کی نظر ہے یہ کہ راز کو راز بھی رکھنے کا ہنر ہے اس میں، لطف یہ ہے کہ کوئی بات چھپاتا بھی نہیں، اور جسم میں آگ لگانے کی ادا جانتا ہے، جسم میں آگ لگانے کی ادا جانتا ہے، رنج یہ ہے کہ لگی آگ بجھاتا بھی نہیں، رنج یہ ہے کہ لگی آگ بجھاتا بھی نہیں۔ ایک شعر کسی خاص محدود ذہنیت پہ ہی کہیے، لیکن غزل میری پسندیدہ ہے اور نظریہ آپ سب کا، کہ دشت دشت میں بس گئے بستیاں چھوڑ کر، یہ کشمیر لداخ کی بات ہے کہ دشت دشت میں بس۔ جناب عبد الجبار طارق صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا حضور، بہت سارے دوست ہیں جو ہمارے اس اسکرین پہ آگے چلے جا رہے ہیں، آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ دشت میں بس گئے بستیاں چھوڑ کر، یوں نہیں آئے ہم آشیاں چھوڑ کر، دشت میں بس گئے بستیاں چھوڑ کر، یوں نہیں آئے ہم آشیاں چھوڑ کر، ارے ہم نے طوفان میں ناؤ تب موڑ دی لوگ جب آ گئے کشتیاں چھوڑ کر، ہم نے طوفان میں ناؤ تب موڑ دی۔ کاشف بھائی بہت بہت شکریہ، محسن صاحب، شاہ صاحب، امرین شاہ صاحب، جناب محسن صاحب، آشا جی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ ہم نے طوفان میں ناؤ تب موڑ دی لوگ جب آ گئے کشتیاں چھوڑ کر، ارے بات کچھ تو ہے اٹھ کر چلے آئے ہم۔ یہ آپ بیتی نہیں ہے، میں آپ کی بیتی اپنے پہ لے کے سنا رہا ہوں کہ بات کچھ تو ہے اٹھ کر چلے آئے ہم اپنی جیتی ہوئی بازیاں چھوڑ کر، بات کچھ تو ہے اٹھ کر چلے آئے ہم اپنی جیتی ہوئی بازیاں چھوڑ کر، آہ کا ہم نے دیکھا ہے ایسا اثر، آہ کا ہم نے دیکھا ہے ایسا اثر، حکمراں آ گئے کرسیاں چھوڑ کر، آہ کا ہم نے دیکھا ہے ایسا اثر، حکمراں آ گئے وردیاں چھوڑ کر، آہ کا ہم نے دیکھا ہے ایسا اثر، حکمراں آ گئے وردیاں چھوڑ کر۔ اور یہ شعر خاص طور سے کشمیر کے حوالے سے، نہ جانے شادی ہوئی تھی تو سب سے پہلے ہم وہیں اڑ کے گئے تھے، ماں، میرے والد محترم، پورا پریوار لے کر کے ہم کئی بار وہاں گئے۔ سنیں آپ کہ جسم میں جن کے کیسر کی خوشبو بسی، جسم میں جن کے کیسر کی خوشبو بسی، وہ کہاں جائیں گے وادیاں چھوڑ کر، جسم میں جن کے کیسر کی خوشبو بسی، جسم میں جن کے کیسر کی خوشبو بسی، وہ کہاں جائیں گے وادیاں چھوڑ کر۔ اور شعر خاص طور سے دیکھیں کہ ایک دن ایسا قد ہوگا حاصل ہمیں، ایک دن ایسا قد ہوگا حاصل ہمیں، لوگ اٹھ جائیں گے کرسیاں چھوڑ کر، ایک دن ایسا قد ہوگا حاصل ہمیں، لوگ اٹھ جائیں گے کرسیاں چھوڑ کر۔ اور یہ آخری شعر دیکھیے کہ آپ ہی بولیے، اور اس پر ضرور اپنی رائے شماری دیجیے گا کہ آپ ہی بولیے کیسے اٹھ جائیں ہم، آپ ہی بولیے
कैसे उठ जाएं हम बज़्म में बज रही तालियां छोड़कर, आप ही बोलिए कैसे कैसे उठ जाएं हम बज़्म में बज रही तालियां छोड़कर, हमने तूफान में नाव तब मोड़ दी लोग जब आ गए कश्तियां छोड़कर। खास तौर से ये सादा सी गज़ल, और बहुत सारे मेरे दोस्त, मेरे अहबाब जो मुझे देख रहे हैं, एक बात का और हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, क्योंकि जब कभी बहुत आप इमोशन में रहें, 17 दिन कबल मेरी अम्मी हुजूर 100 साल 2 महीने की उम्र में जन्नत नशीन हुई है। दुनिया के एक एक कोने से, बर्रे सगीर से, दुनिया के जितने ममालिक, अल्लाह शाहिद अगर आप मेरी फेसबुक और मेरे वो देखें, ना जाने कितनी बेशुमार दुआएं उनके लिए, मगफिरत की दुआएं आप सबने की है। ताउम्र हम आपके आभारी रहेंगे, मशकूर व ममनून रहेंगे। आइए गज़ल का सफ़र जो मुझे ज़िंदगी देती, उर्दू ज़बान ने मुझे ज़िंदा रखा हुआ है। ख़ास तौर पे यह गज़ल देखिए। न अब वो जानिसारी है, न अब वो जानिसारी है, न खुददारी निकलती है। न अब वो जानिसारी है, न वो जानिसारी है, न खुददारी निकलती है। मरासिम खाक सारी में भी मक्कारी निकलती है। तारिफ नियाजी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आदर्श भैया आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। अदीब साहब, नवाजिश करम, ये गज़ल आप लोग ख़ास तौर पर सुने कि ना वो जानिसारी है, न खुददारी निकलती है, मरासिम खाक सारी में भी मक्कारी निकलती है। लेकिन राहत कहाँ से आती है कि नबी की नात गोई की बदौलत इन दिनों अक्सर, नबी की नात गोई की बदौलत इन दिनों अक्सर, जहां पर दुश्मनी थी अब वहीं यारी निकलती है। जहां पर दुश्मनी थी, रंजन निगम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भाई साहब माजिद अली साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि नबी की नात गोई की बदौलत इन दिनों अक्सर, जहां पर दुश्मनी थी अब वहीं यारी निकलती है। न वो रुतबा, न वो जलवा, न वो शोहरत, न वो दौलत। मोइन शादाब साहब, वाजिद मेरठी साहब, मोइन शादाब भाईजान बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे छोटे भाई वाजिद मेरठी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गुलाम अब्बास खान साहब, नवाजिश करम, मशकूर ममनून हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि न वो रुतबा, न वो जलवा, न वो शोहरत, न वो दौलत, मगर फितरत से मेरी कब जमींदारी निकलती है। आपको लुत्फ आया न हो मैं नहीं जानता, लेकिन जिस सिलसिले की मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ, जमींदारी खोने का कर्म क्या होता है, लेकिन इसके बाद भी हम सपने में जीते हैं। सुनिए कि न वो रुतबा, न वो जलवा, न वो शोहरत, न वो दौलत। समीर खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मगर फितरत से मेरी कब जमींदारी निकलती है। अब्बास नियाज़ी साहब, ये शेर आपकी नजर है कि बड़ी हैरत से अक्सर देखकर खामोश रहता हूँ। समीर खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शेर सुनिए कि बड़ी हैरत से अक्सर देखकर खामोश रहता हूँ, नए जरदार से हर शख्स की यारी निकलती है। नए जरदार से हर शख्स की यारी निकलती है। मुझे गम नहीं है इसका, हम अभी भी उतने ही दरिया दिल, उतने ही मजबूत हैं कि मुझे अपनों ने लूटा है मुसलसल उम्र भर। लेकिन चिराग शर्मा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चिराग साहब, ये शेर आपकी नजर है, मुझे अपनों ने लूटा है मुसलसल उम्र भर, लेकिन मेरी उनके लिए अब भी तरफदारी निकलती है। मुझे अपनों ने लूटा है मुसलसल उम्र भर, लेकिन मुसलसल उम्र भर, लेकिन मेरी उनके लिए अब भी तरफदारी निकलती है। और जिसे लग जाए जालिम उम्र भर पीछा न छोड़ेगी। जिसे लग जाए, जमान खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यह शेर आपकी नजर है कि जिसे लग जाए जालिम उम्र भर पीछा न छोड़ेगी। सियासत की कहाँ दिल से ये बीमारी निकलती है। और ख़ास तौर पर ये मक्ता मेरी तरफ से एक ख़ास पैगाम देता है ये कि ये दिलकश शोखियाँ, ये कज अदाई, ये गुमा सागर। अमान अहमद आज़ाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये शेर
आपने आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं कि ये दिलकश शोखियां, ये कज अदाई, ये गुमा सागर, मगर हमसे कहाँ अब नाज बरदारी निकलती है, मगर हमसे कहाँ अब नाज बरदारी निकलती है। न वो रुतबा, न वो जलवा, न वो शोहरत, न वो दौलत, मगर फितरत से मेरी कब जमींदारी निकलती है। एक एक खास गजल मौका भी है, आसपास के पड़ोस के मुल्क साजिश करके हमारे मुरली शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अमान अहमद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हजरत तारिफ नियाजी साहब मैं कितना शुक्रिया आपका। मैं तो सच कहूँ, मेरे पास हालांकि शायर के पास लफ्ज़ की कमी नहीं होती, लेकिन आपकी मोहब्बतों के हवाले से, उस वसीले से बहुत कम पड़ते हैं अल्फाज। आइए, ये नज्म खास तौर से आज के इस बज्म को पोइट्री वर्ल्ड की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ऐ ज़मीं, ऐ सरज़मीं, ऐ ज़मीं, ऐ सरज़मीं, तू मोहब्बत, तू सदाकत, तू दुआ, तू आचमन, तू मोहब्बत, तू सदाकत, तू दुआ, तू आचमन, ऐ ज़मीं, ऐ सरज़मीं, तू है मेरी खाके वतन, ऐ ज़मीं, ऐ सरज़मीं, तू है मेरी खाके वतन। डॉक्टर नीलमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि खून हो मेरे बदन में और हो प्यासी ज़मीं, खून हो मेरे बदन में और हो प्यासी ज़मीं, हर मकी कहता है मुझ तुझसे तू ही माँ मेरी ज़मीं, हर मकी कहता है तुझसे तू ही माँ मेरी ज़मीं, तू शहीदे अव्वली सुल्तान, तू शहीदे अव्वली सुल्तान रब की ज़मीं, लक्ष्मी बाई की माँ है तू ही है प्यारी ज़मीं, अरे मुस्तकिल तो चल नहीं सकता ये नफरत का पवन, ऐ ज़मीं, ऐ सरज़मीं, तू है मेरी खाके वतन, हर जगह और हर कदम पर मौत के मेले हुए, बिस्मिलो अशफाक तेरी गोद के खेले हुए हैं, बहादुर शाह जफर रंगून को झेले हुए, तातियां मंगल यहीं बारूद के गोले हुए, तब कहीं जाकर यहाँ महके हैं खुशबू के सुमन, ऐ ज़मीं, ऐ सरज़मीं, तू है मेरी खाके वतन। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये बंद देखें कि हैं भगत सैम नियाजी साहब, ये बंद आपकी नजर कर रहे हैं कि हैं भगत सुखदेव भी आखिर गुरु के लहन के, हैं भगत सुखदेव आखिर, हैं भगत सुखदेव भी आखिर गुरु के लहन के, किस कदर कर्जे चुकाए सर जमीने रहन के, और बोस गांधी और जवाहर फूल तेरे सहन के, लाल अब भी है तेरे अब्दुल हमीदी जहन के, इस तरह आजाद हो पाया है खुशियों का चमन, ऐ जमीन, ऐ सर जमीन, तू है मेरी खाके वतन। इमाद उल मलिक साहब, हसन काजमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। लखनऊ तो अदब का गहवारा है, आप दोनों को सलाम सत सलाम। ये बंद आपकी नजर कर रहे हैं कि सब जहानत इल्म की सैयद की हर महफिल में थी, सब जहानत इल्म की सर सैयद, सैयद की हर महफिल में थी, मौत भी आजाद की अब बन के दहशत दिल में थी, बच्चा बच्चा जोश में था बेबसी बातिल में थी, अरे जलियांवाला बाग जैसी बुज़दिली कातिल में थी, सब लहू सागर बहा दे फिर भी कम है जाने मन, ऐ जमी, ऐ सर जमी, तू है मेरी खाके वतन। हमारे पास थोड़ा सा वक्त अभी है, खास तौर पर इससे पहले कि आगे चलूं, जैसा मैंने कहा था कि अम्मी हुजूर जन्नत नशीन हुई हैं, आज ही खास तौर पे आपके खिदमत के लिए मैं लखनऊ एयरपोर्ट पे जब पहुंचा, बड़ी मुश्किल से 4 बार फ्लाइट कैंसिल हुई। परवेज मलिक ज़ादा साहब, आप तो उस आस्थाने की नुमाइंदगी करते हैं जिनके कदमों में बैठकर हमने इबादत के जज्बे से शेर व शायरी सीखी है। आली मरतबत मरहूम मलिक ज़ादा मंजूर साहब के साहबजादे काशिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ख़ास तौर पे एक शेर एयरपोर्ट पे बैठा था, हम लोगों में एक रस्म होती है, जब जलाया जाता तो अस्थियों को ले जाकर के गंगा जी में डाला जाता, घर द्वार
جتنی شہرت، جتنی دولت، جتنا सम्मान माँ की बदौलत वहाँ के डीएम साहब के नुमाइंदे आए थे, उनके मुंह से निकला कि आज आज़ाद हिंदुस्तान में 100 साल की ताल्लुकदारी अम्मा के जाने के बाद खत्म। एक शेर आज ताज़ा उनके हवाले से हो गया, दिल को मजबूत करके आपको सुना रहा हूँ। माँ अलविदा फेसबुक पे हमने डाला है कि होकर अनाथ चल पड़ा हूं मुंबई की ओर, होकर अनाथ चल पड़ा हूं मुंबई की ओर, गंगा में डाल आया हूं अम्मा की अस्थियां, गंगा में डाल आया हूं अम्मा की अस्थियां। जब कभी कमजोर हो जाता हूं तो मेरे पास एक नायाब नुस्खा है, बारगाह रिसालत में उसकी तरफ गामजन हो जाएं आप। दो कतात खास तौर पर जो मेरी पहचान है पूरी दुनिया में, कि यूं यूं तो मकबूल हुए हैं कई गौहर पत्थर, हाँ मगर हामिले हुर्मत हैं दो पत्थर पत्थर। एक एक तो काबा की दीवार पे जो चस्पा है, दूसरा आका ने बांधा जो शिकम पर पत्थर। इसी कबील का एक कथा और हम देखें, अव्वल नहीं रहा कोई आखिर नहीं रहा, अव्वल नहीं रहा कोई आखिर नहीं रहा, मेरे नबी के बाद नबी फिर नहीं रहा। अरे जब सरकार ने जब संग शिकम से लगा लिया, कोई भी बुत परस्त काफिर नहीं रहा। आज की इस बज़्म को छोड़ने से पहले 3-4 मिनट हैं माँ के कदमों में, जन्नत नशीन मेरी माँ, आप सबकी दुआएं। माँ मुझे क्या समझती थी? सैयद अब्दुल मन्नान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे कमअक्ल कहती है, बहुत कच्चा समझती है। मैं अभी भी है में ही कहूंगा, था कभी हो ही नहीं सकता माँ के लिए। मुझे कम अक्ल कहती है, बहुत कच्चा समझती है, मगर हर बात ही में माँ मुझे सच्चा समझती है। खुदा के फजल से नाती नवासों से भरा है घर, मगर इस उम्र में भी माँ मुझे बच्चा समझती है। मेरी हर सांस, हर धड़कन को माँ ही ने निखारा है, मेरे इल्म हुनर को रात दिन माँ ने संवारा है। और शेर जिस पर मुरारी बापू कि कमाकर इतने सिक्के भी तो माँ को दे नहीं पाया, कि जितने सिक्कों से माँ ने मेरा सदका उतारा। कमाकर इतने सिक्के भी तो माँ को दे नहीं पाया, कि जितने सिक्कों से माँ ने मेरा सदका उतारा है। जरा सरदर्द हो जाए तो माँ झट सर दबाती है, नसीहत लाख देती है, नए नुस्खे बताती है। ये मेरी सचमुच की उम्र है कि मैं 70 साल का बूढ़ा कभी जब गांव जाता हूं, अभी तक माँ मुझे सोते समय काजल लगाती है, अभी तक माँ मुझे सोते समय काजल लगाती है। दिया जलने से पहले शाम को घर लौटाता हूँ, मुझे घर देखकर आंखों में माँ के दीप जलते हैं। करिश्मा है ये जन्नत का मेरे घर पे उतर आना, ज़ईफ़ी में मेरी माँ का मेरे सीने से लग जाना। दिया दहलीज पर हर शाम, दिया दहलीज पर हर शाम माँ को ही जलाना है। हर एक बच्चे की आंखों में उसे काजल लगाना है। किया फिर मुल्तवी अम्मा ने अपना शहर का जाना, बियाई गाय को कुछ दिन हरा चारा खिलाना है। करिश्मा है ये जन्नत का मेरे घर पे उतर आना, ज़ईफ़ी में मेरी माँ का मेरे सीने से लग जाना। करिश्मा है कि जिस बेटे के घर माँ रहने लगती है, दुआ बरकत से उस घर की कमाई बढ़ने लगती है। मेरे चेहरे पे लिखी हर इबारत को समझती है, समझती थी। मेरे चेहरे पे लिखी हर इबारत को समझती है, मगर माँ ने कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा। अरे गुजरना भीड़ से हो या सड़क भी पार करनी हो, अभी भी आदतन माँ हाथ मेरा थाम लेती है। मैं जब तक पेट भरकर शाम को खाना नहीं खाता, निवाला हल्क से नीचे कभी माँ के नहीं जाता। न जाने कौन सी मिट्टी से माँ का जिस्म बनता है, जो जो बच्चा छींक दे तो माँ को खांसी आने लगती है। ज़ईफ जिस्म के कांधे पे कायनात लिए, देख कदमों तले जन्नत लिए माँ आती है।
دیکھ قدموں تلے جنت لیے ماں آتی ہے، میرے چہرے پہ لکھی ہر لکھاوٹ کو سمجھتی ہے، مگر ماں نے کبھی اسکول کا منہ تک نہیں دیکھا۔ ایک شعر میں جانتا ہوں کہ اپنی زندگی میں اس سے بڑھیا شعر ہم نہیں کہہ پائیں گے۔ دا اور دلیل کا کرشمائی کھیل ہے شعر گوئی۔ آپ سب عادل ہیں، جج ہیں، منصف ہیں، شعر سنیے۔ اب ماں کی یاد آنے پر مشکل ہو رہا ہے سنانا، لیکن شعر ضرور سنیے گا۔ بشر کی چھوڑیے، بشر کی چھوڑیے، سرکار دو عالم نے پرکھا ہے۔ آپ حضرات مجھے بتائیں کہ جس چیز کو سرکار نے پرکھ لیا ہو، کیا کوئی دوسری دلیل وہاں آس پاس بھی پٹک سکتی ہے؟ بشر کی چھوڑیے، سرکار دو عالم نے پرکھا ہے۔ دوا سے کچھ نہ ہو، ماں کی دعا تب کام آتی ہے۔ دوا سے کچھ نہ ہو، ماں کی دعا تب۔ کرشمہ ہے کہ جس بیٹے کے گھر ماں رہنے لگتی ہے، دعا برکت سے اس گھر کی کمائی بڑھنے لگتی ہے۔ جسم بھی جواب دے گیا ہے، ذہن بھی اب کہیں ایسی جگہ چلا گیا ہے۔ پوئٹری ورلڈ کا بہت بہت شکریہ طارف نیازی صاحب، آج آپ نے کئی دنوں بعد مجھے میرے جسم میں تھوڑی سی جان آپ نے ڈال دی ہے۔ اس کائنات میں جن لوگوں نے بھی میری ماں کے لیے دعائیں کی ہے، بے شمار دعائیہ کلمات آئے ہیں، آپ لوگوں نے ان کے مغفرت کی دعا کی ہے۔ آپ اسی طرح سے ہماری سرپرستی کرتے رہیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ بہت اچھی ذہنیت، بڑی مضبوط ذہنیت نہیں تھی، لیکن آپ کی محبتوں کا قرض بھی تھا، اور آپ کی محبتوں کا معیار بھی ایسا تھا۔ ایک ایک شخص کو، ایک ایک فرد کو، ایک ایک رکن کو، سب کو سلام، ست سلام، بہت بہت شکریہ۔ آج کی شام دیا دل کا جلائے رکھنا، ایک رشتہ ذرا مجھ سے بھی بنائے رکھنا۔ میں تو شاعر ہوں، غزل کہہ کے چلا جاؤں گا، میری آواز کو سینے سے لگائے رکھنا۔ پوئٹری ورلڈ کا بہت بہت شکریہ، نوازش، کرم۔ اردو زبان کی بقا، اس کے فروغ، اس کی آبیاری کے لیے آپ کی کاوشات، آپ کی یہ بے شمار کوششیں ادب میں درج کی جائیں گی۔ ہندی اور اردو کے اس علم بردار کو سلام، ست سلام، بہت بہت شکریہ، نوازش، کرم، فی امان اللہ، ساگر۔